Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the basics of the formic appendix. Again, the same topic with a different subtopic, and the subtopic is rate processes. So, the rate processes, what is rate process, and how many types of rate processes they are involved when we are basically studying the formic kinetics. uh, so let's begin with the first slide. The rate process is simply defined as the speed and the mechanism. So it is related to the speed and it is related to the mechanism. So the speed and the mechanism through which the drug moves in the body के body के अंदर drug जो है किस mechanism से किस speed से it is moved, that is called as the ADME, absorption, distribution, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के बॉडी के अंदर ड्रग किस मैकेनिज्म से किस स्पीड से मूव करती है. इन सिंपल वर्ड्स किस प्रोसेस से या किस स्पीड से ड्रग अब्जॉर्ब होती है, थ्रू विच प्रोसेस आर द मैकेनिज्म ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड एंड देन ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी कि कैसे ड्रग एलिमिनेट होती है. सो ऑल दीज प्रोसेसेस they are basically involved in the pharmacokinetics, and these processes could be the first order process and that could be zero order process. और हमारी ज़्यादातर ड्रग्स जो है फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है. But before discussing all these things, this is the rate process which is involved to affect the onset of drug action कि drug का action कब start होगा, the intensity of drug action कि drug की intensity क्या होगी, how much the pharmacological effect it will be produced, and for how long the pharmacological action will be produced or the drug action will be produced. That is called as the duration of action. So this is because of this rate processes, or this is because of the ADME that controls the onset, that controls the intensity, that controls the duration of drug action. Now, these rate processes, they are basically mathematically जब हम इसको express करते हैं, they are expressed using the figure. हम इसको in the form of figure या आप कह सकते हैं कि in the form of ये जो हमारा वो होता है फिगर की फॉर्म होती है उसकी इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू वाई एक्सेस एंड द एक्स एक्सेस. एक वाई एक्सेस हमारे पास होती है एंड देन वी हैव द एक्स एक्सेस, इसकी फॉर्म में इसको प्रेजेंट करते हैं. जो एक्स एक्सिस की फॉर्म है दिस इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट वेरिएबल. इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. दिस वन इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Like time is the independent variable, and with the time the drug concentration changes and it is called as the dependent variable. तो एक dependent variable होता है and then we have the independent variable. Suppose on the y-axis we plot the drug amount. हम drug की amount को present करते हैं. So this is called as the amount of drug changes in the body with respect to time. So amount of drug will be, you can say, the plotted on the y-axis and the time will be plotted on the x-axis. तो इसके ऊपर आप इसको प्लॉट करते हैं. So suppose the amount is y. हम कहते हैं कि हमारी जो ड्रग है बॉडी के अंदर उसकी अमाउंट जो है इट इज y. ये y एक्सिस है एंड द अमाउंट इज y. सपोज हम कहते हैं कि वो अमाउंट जो है दैट इज y है. So if we plot the data on the y-axis and then on the x-axis, and we measure the amount of drug in the urine, that is u means urine and y means that is the amount of drug, and we measure the plasma concentration. So if we plot the amount of drug inside the body with respect to time, or the concentration of drug on the y-axis with respect to time, so you will have some kind of curve. आपके पास curve आती है. That basically speaks about the rate process. कि ये first order का rate process है या second order का rate process है, that again it will be discussed in the coming slide. Okay, let's move to the next slide. Suppose we have the figure, हमारे पास figure है, and we plot the data on the x-axis and we plot the data on the y-axis.
सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट है और फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट भी है, दिस इज द सेकंड पॉइंट, और हम इसको आई मीन के हमारे पास कर्व दैट इज इन दिस शेप इस फॉर्म में है, इट इज गोइंग डाउन, सो इट मीन्स दैट देयर इज सम डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड अगेन दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, हमारे पास ये जो है दिस इज एक्स एक्सिस है, so this is x axis. Okay, so if this is the first day, I mean the value that is called as y1 and this is called as y2, क्योंकि start में हमने ये वो ली थी concentration ली थी, and this is the y2, ये दूसरी हमारी value है. And this is the time 10, that is t1, that is time 0, इसके ऊपर जो वो है that is 0, और suppose this is the t2, क्योंकि ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी दिस इज द कंसंट्रेशन, ये दूसरी हमने y2 वैल्यू ली है, तो इसको इसके साथ we will join together and this is the time, not that time, sorry, this is the basically the time. If this is the, you can say the t2, ये हमारा t2 है, not this one. Okay, so this is the t1, that is t0, the time is 0, and this is the t2, suppose it is 10, हम इसको suppose 10 करते हैं, and suppose this is equal to 20 and this is equal to the again this could be, suppose this is equal to 5, इसको हम 5 करते हैं, suppose this is equal to 5. So now the equation will be y2 is equal to 5 minus y1 is equal to 20 divided by t2 is equal to 10, T2 is equal to 10 and T1 is equal to 0. So the answer will be minus 15 divided by 10. It will be equal to 1.5. That is the change. That is the rate of change. So this is called as the rate of change. कि rate of change जो है, that is whether it is constant with respect to time. हम इसको देखेंगे कि ये जो rate of change है with respect to time, it is constant या it is depends upon the ड्रग कंसंट्रेशन, ये क्या, ये अमाउंट जो है, ये नंबर जो है, वैल्यू जो है, ये कांस्टेंट रहती है या ये चेंज हो रही होती है वैल्यू, और परसेंटेज कांस्टेंट रहती है. सो दीज थिंग्स विल बी अगेन डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड एज ए फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, बट दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज. इसको दिस इज कॉल्ड एज द रेट प्रोसेस, कि कैसा रेट है उस ड्रग का. Okay, so but slope again these things will be discussed in the coming lectures. जो आगे lectures हमारे आएंगे उसमें intercept concept है या दूसरी चीजें हैं, ग्राफ को कैसे present करते हैं, तो I will try my best to cover all these things. But this is the, you can say, the rate process. Okay, so these rate processes, when we discuss the pharmacokinetics, there are two rates, although there are different types, but we in the pharmacokinetics deal with two processes. The first one that is called as the zero order and the second one that is called as the first order. ये इनको हम डील करते हैं. हमारी ज़्यादातर ड्रग्स हैं, most of our drugs, they basically first they follow the first order processes in the absorption, in the distribution and metabolism and elimination. So all the first processes there. और जो ज़ीरो ऑर्डर का प्रोसेस है, इट इज़ देयर, कुछ केसेस में है, कुछ फॉर्मुलेशन में है, कुछ ड्रग्स की एग्जांपल्स हैं. सो द ज़ीरो ऑर्डर प्रोसेस दैट इज़ फॉलोड, और उसकी भी हम एग्जांपल देंगे. बट बिफोर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, इन द जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर दिस इज the rate of change of amount of drug y with respect to time, dy over dt, is directly proportional to k, sorry, this is not k, this is directly proportional to y, and this is n. If it is not directly I mean if it is independent of the drug concentration inside the body, the n will be equal to 0. इसको 0 हम present करेंगे. If it is directly proportional to power 1, then n will be equal to 1. अगर हम n की वैल्यू 0 प्लेस करते हैं तो rate of change will be equal to k, क्योंकि इसको हमने n को 0 कर दिया है. दिस ऑल टुगेदर विल बिकम इक्वल टू 1, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस वन. बट इफ n इज इक्वल टू 1, देन इन दैट सिचुएशन dy over dt is equal to ky. So it means the rate of change is directly proportional to, and most of the drugs they follow this kinetics. Few drugs follow this thing, and there are formulations.
So that is the basically the equation that is the exponent. ये n जो है this is the power है इसकी, और ये डिपेंड करता है कि n could be equal to 0, n could be equal to 1. If n is equal to 0, it will be zero order kinetics. If n is equal to 1, it will be first order kinetics. Again, most of the drugs they follow first order process. Now moving to the next slide, which is a zero order process. अगर ये zero order process है तो y will be equal to 0. हमने जिस तरह आपसे डिस्कस किया कि y will be equal to 0. If y is equal to 0, it will be equal to 1. ये all together इसकी जो वैल्यू है that will be equal to 1, और 1 को हम k naught से जब मल्टीप्लाई करते हैं the answer will be equal to k naught. So minus dy over dt, rate of change of amount of drug inside the body with respect to time, is equal to k naught, and this minus sign represents the there is decrease. आप देखें उस कर्व में, जिस तरह ये कर्व है, तो सपोज कि आपने आई बोनस लिया है और आई बोनस की फॉर्म में यू हैव बेसिकली ये आपके पास ऐसे आई है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग. आप जहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा होगा कि ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, तो दैट्स वाई this is minus sign. And if you integrate, you apply the integration, you will have the amount of drug inside the body, integration constant, and then the elimination rate constant, which is zero order rate constant, and the t will be equal to multiplied with. तो जब इसकी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन आती है, और दिस इज वेरी सिमिलर टू द लीनियर काइनेटिक्स की जो वो हमारी इक्वेशन होती है या लीनियर इक्वेशन होती है उसकी एग्जैक्टली इट इज द सेम. एंड दिस वाई रिप्रेजेंट्स द हमारे पास जो अमाउंट ऑफ ड्रग एट एनी टाइम इन द बॉडी, दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्रग एट जीरो टाइम. सपोज इंट्रावीनस बोलस आपने दिया है और आईवी रूट से आपने ड्रग दिया है, जीरो टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी वाई नॉट, एंड दिस इज एट एनी टाइम. किसी टाइम पे आपने देने के बाद, अगर 5 आवर के बाद करते हैं या 1 आवर के बाद करते हैं, सो दैट इज द अमाउंट, और उस टाइम को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंड दिस इज द के नॉट, उसका कांस्टेंट होता है. अगेन इसकी वैल्यू जो है that will be there, it will be available in the literature, या आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं from the graph. So these things again will be coming in the coming lectures में हम इसको डिस्कस करेंगे. Okay, so if we replace the y, I mean the y with the x, you will have this equation. आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है dx over dt, यानी कि आप कहते हैं कि मेरी जो ड्रग है दैट इज x, तो आप इस फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. यू विल हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, x इज इक्वल टू x नॉट माइनस के नॉट टी. आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है. इट इज एज द सेम एज दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, बिल्कुल सेम है जिस तरह मैंने उसको पहले किया है, बट ये है कि जहाँ पे वहाँ पे y था, इट इज द x. In the previous slide it was y naught, इनके zero time पे जो drug concentration है, and this is the first order rate, zero order rate constant, this is the time at which you are going to determine the amount of drug inside the body. So what is the unit for this? The unit for zero order rate constant, it is the milligram, because अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे x naught is there, x is there. अगर इसको दूसरी साइड पे आप ले जाते हैं that will be equal to k naught t, और इस साइड पे ये आएगा तो x naught माइनस x, और फिर t उसके ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो द अमाउंट विल बी इन द नोमिनेटर एंड द टाइम विल बी इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा एंड नोमिनेटर में ये आ जाएगा. सो यू विल हैव द अमाउंट एज ए एम जी और टाइम in R. So it will be the unit will be milligram per hour, या अमाउंट पर यूनिट टाइम जिसको आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड में. तो आपकी कोई भी हो सकता है, माइक्रोग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, हेक्टोग्राम, वट एवर इज द यूनिट. और इसका जो टाइम का यूनिट है दैट विल बी इन सेकेंड, मिनट्स और आवर्स के अंदर हो सकता है. सो दिस इज द यूनिट ऑफ द जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट है. और अगर आप इसको आई मीन के प्लॉट करते हैं इस के डेटा को ऑन द रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर के ऊपर, सिंपल जो डेटा है आपका, आप इसको रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं. अगर ये स्ट्रेट लाइन देता है एज सच, सो दैट विल बी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. आप उधर से भी ग्राफ से भी कंफर्म कर सकते हैं कि विदाउट चेंजिंग द डेटा, जस्ट प्लॉट इट ऑन द ग्राफ पेपर. आप उसको लीनियर ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करें एंड यू विल हैव दिस काइंड ऑफ डेटा. और जीरो टाइम पे अगेन द इंटरसेप्ट, जो जीरो टाइम पे डेटा होता है इट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट. अगेन इट विल बी कमिंग, विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स. दैट इज द डोज. ये क्योंकि आईवी बोलस सपोज आपने दिया है तो जीरो टाइम पे दैट विल बी इक्वल टू द डोज.
एंड दिस इज इक्वल टू द स्लोप। इसकी स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू माइनस के इक्वल होती है, यानी कि अगर आपके पास के की वैल्यू है तो स्लोप आपकी क्या होगी, माइनस से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल हैव द स्लोप। अगेन दिस विल बी कमिंग इन द कमिंग लेक्चर्स। और स्लोप इज सिंपली द पर यूनिट टाइम कितना चेंज होता है अमाउंट ऑफ ड्रग में, दैट इज कॉल्ड एज द स्लोप। कि यूनिट टाइम में कितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज होती है, बट इन दिस केस डिक्रीज कितनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज द स्लोप। तो स्लोप को इधर से हम वो करते हैं, कंफर्म करते हैं। अगेन दिस इज इक्वल टू माइनस के। अगर के की आपकी वैल्यू पता है तो यू कैन डिटरमिन, इसको हम आगे जाके लेक्चर्स में वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जीरो वाटर प्रोसेस? आईवी इन्फ्यूजन कांस्टेंट रेट से हम देते हैं कांस्टेंट, और जो चीज कांस्टेंट इससे एलिमिनेट हो रही हो रेट से, या absorb हो रही हो, whatever is the process that is constant, it is called as, it is following the zero water process. IV infusion constant rate से हम देते हैं। control release dosage form, the drug is released from the dosage form as a constantly, यानी कि उसकी constant amount release होती है, that is called as, it is following the zero water process. And in transdermal patches the drug is absorbed through the skin at a constant rate, so again the constant, so that's why it follows the zero water process. इसी तरह बहुत सी हमारी ड्रग्स भी है हाई डोज के ऊपर, फेनिटाइन, उसकी जो एलिमिनेशन है जीरो वाटर प्रोसेस को फॉलो करती है। एस्पिरिन की हाई डोज के ऊपर जीरो वाटर प्रोसेस को फॉलो करती है। सो देयर आर कपल ऑफ एग्जांपल्स दैट फॉलो द जीरो वाटर प्रोसेस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ड्रग फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। फर्स्ट ऑर्डर को हम I mean the rate of change of amount of drug, or in other words, the rate of decrease in the amount of drug with respect to time is directly proportional to the amount of drug present in the body। तो उसके डायरेक्टली, सो n इज इक्वल टू वन, जब n इज इक्वल टू वन और हम प्रोपोर्शन को खत्म करते हैं, देन वी प्लेस द कांस्टेंट एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इसका जो यूनिट है इट इज डिफरेंट, इस कांस्टेंट का, इसका यूनिट है पर आर। और जो द प्रीवियस वन, उस केस में हमारा जो यूनिट था दैट वाज द डिफरेंट वन, मिलीग्राम पर आवर था, इसका पर आवर है। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगेन दीज थिंग्स विल बी कमिंग इन द कमिंग लेक्चर। अगर इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करते हैं, यू विल हैव दिस इक्वेशन, या इसको फर्दर आप सॉल्व करते हैं नेचुरल लॉग से, यू विल हैव दिस इक्वेशन। अगर आप इसको इसके ऊपर प्लॉट करते हैं द कॉमन लॉग के ऊपर, यू विल हैव दिस इक्वेशन। लाइक अगर आप इंटीग्रेशन में जाएंगे यू विल हैव दिस वन। ई की वैल्यू आप पुट करें, ई की वैल्यू जो है 2.718 है। के की वैल्यू आपको पता है, टाइम यू नो, और वाई नॉट पता है, तो यू कैन डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी एट एनी टाइम। And if you solve this equation with the natural log, that will be equal to natural, this will be equal to y naught natural, I mean the natural log, natural logarithm, and this will be equal to minus kt, उसके इक्वल आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं, because the natural log of e is equal to 1, so that's why this will be equal to minus kt। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं, because the natural log is equal to, natural log is equal to the 2.303 कॉमन लॉग, तो जहाँ पे नेचुरल लॉग होगा हम उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो जहाँ पे 2.3 कॉमन लॉग, यहाँ पे 2.3 कॉमन लॉग, और यहाँ पे तो प्लेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो इफ इट इज 2.303 कॉमन लॉग इज इक्वल टू अगेन 2y, सॉरी ये y भी आ जाएगा, and 2.303 कॉमन लॉग अगेन y नॉट, क्योंकि y नॉट है माइनस के टी। तो अगर इस सारी इक्वेशन को आप डिवाइड करते हैं 2.303 से, द आंसर विल बी दिस वन, इसका आंसर ये। और इस इक्वेशन, इस कंपोनेंट को अगर आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि सारी इक्वेशन को आप मैथ के प्रिंसिपल में सबको डिवाइड करना होता है, सो योर आंसर विल बी इक्वल टू लॉग, that is the common log of y is equal to common log of y naught minus kt divided by 2.303, आपके पास आंसर आ जाएगा। Okay, so again if you replace the y with the x, so the rate of change in the amount of drug will be equal to minus dx over dt is equal to k x 1 की पावर 1 है, so y की जगह आपने x को प्लेस कर दिया है। Again this equation, and with the natural log this equation the same, and with the common log it will be equal to this one। So कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि the
नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 2.3, क्योंकि यहाँ पे 2.3 आता है, और कॉमन लॉग का जो हमारा बेस है दैट इज 10, और उस ई का ई आपने प्लेस किया है। सो इसकी जो वैल्यू है जब आप इसको वो करते हैं दैट इज सॉल्व करते हैं, 0.4343 आपके पास आती है। तो यहाँ पे 0.4343 हम पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1। इन अदर वर्ड्स लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1। ये सिंपल, ये इसका मतलब है कि लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1, इसके इक्वल होता है। एंड द ई इज इक्वल टू 2.717। इसको भी उन्होंने सॉल्व किया कि ये कैसे 2.717 होता है। बट रिमेंबर लाइक पाई जिस तरह हमारा 3.14 होता है, तो ई इज इक्वल टू 2.718 के इक्वल होता है। तो जहाँ पे इसकी वैल्यू होगी यू कैन प्लेस दैट वैल्यू इन द अगेन दिस थिंग। जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉल्व करेंगे दे विल बी रिपीटेड। इफ यू प्लॉट द डेटा, द फर्स्ट ऑर्डर का डेटा अगर आप एज सच प्लॉट करते हैं आपके पास कर्व ऐसी आती है दैट रिप्रेजेंट एज सच आपने प्लॉट किया है, लेकिन जीरो ऑर्डर में आपके पास कर्व स्ट्रेट आती थी, बट इन दिस केस द कर्व इज लाइक दिस वन। ओके, तो कर्व की फॉर्म में आती है। अगर आप इसी डेटा को नेचुरल इनके आई मीन के उसको डेटा को कन्वर्ट करते हैं विद नेचुरल लॉगरिथम में, तो जो वैल्यू आती है, जो आपका आंसर आता है, उसको आप प्लॉट करते हैं ऑन द रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर, आपके पास ये कर्व आती है, उसकी स्लोप माइनस में, और आपकी इंटरसेप्ट दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई नॉट। अगर उसी डेटा को आप जो आपका डेटा है उसको आप कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं एंड यू प्लॉट इट ऑन द रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर, उसके ऊपर आप इसको प्लॉट करते हैं, आपकी स्लोप डिफरेंट होती है बिकॉज ये कॉमन लॉग है, तो इसमें स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई 2.303 एंड द इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ वाई नॉट। तो यहाँ पे लॉग ऑफ वाई नॉट, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ वाई नॉट। डिफरेंट इसका थोड़ा सा आ रहा है कि स्लोप विल बी इक्वल टू दिस वन, आंसर विल बी द सेम, आपका स्लोप इधर इधर एवरीथिंग इट विल बी द सेम, but here slope will be equal to minus k divided by 2.303 आपका आता है। So this is all about those graphs। आपके पास ग्राफ की शेप ऐसी होगी। Similar is the case, आपके पास ये केस है। अगर आप इसको प्लॉट करते हैं आई मीन द रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर के ऊपर, और आपकी कन्वर्टेड वैल्यू है, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ डेटा। आप ये दिस इज अगेन द कॉमन लॉग, क्योंकि ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द कॉमन लॉग के कन्वर्टेड वैल्यू है, आप उसको प्लॉट करना है। ओके, so moving next, what is the examples की application? Most of the drugs while being absorbed, while being eliminated, while being metabolized, being distributed, so they follow the first order process कि जितनी ज़्यादा ड्रग के अंदर आई मीन कि जीआईटी के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, जितनी ज़्यादा ड्रग होगी उतनी ज़्यादा एलिमिनेट होगी, बट द डिक्रीज विल बी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, कांस्टेंट परसेंटेज वो होगी, कांस्टेंट अमाउंट से रिलेटेड इसका वो नहीं है, ये जीरो ऑर्डर को फॉलो नहीं करती। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस के अमाउंट है या परसेंटेज है, इसका इनके फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से डिफरेंस है, यहाँ पे चीज़ें ये क्लियर हो जाती है। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड द जीरो ऑर्डर। हमारी कम ड्रग्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया एथेनॉल है, हाई डोज फेनिटाइन है। हाफ लाइफ इस केस में कांस्टेंट नहीं होती, इस केस में कांस्टेंट होती है, और दिस इज द फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द ड्रग्स उसको फॉलो करता है। ओके, सो द कांस्टेंट अमाउंट इज एलिमिनेटेड, क्योंकि सिस्टम सैचुरेट हो जाता है तो कांस्टेंट अमाउंट इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, लेकिन इस केस में कांस्टेंट फ्रैक्शन, कांस्टेंट परसेंटेज, सिस्टम सैचुरेट नहीं होता, परसेंटेज उस अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। So in case of first order, the constant percentage, constant fraction is eliminated. In case of zero order, the constant amount is eliminated. And the zero order, it is independent of drug concentration. ये डिपेंड उससे इंडिपेंडेंट होती है, जो भी ड्रग की अमाउंट है कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अमाउंट जो है ये in case of first order the amount will be changing, in case of zero order the amount will remain constant, but in case of the first order the percentage and the fraction it will remain the constant, but in this case the fraction and the percentage will be changing। जब आप डेटे को कैलकुलेट करेंगे you will see कि कैसे एक चीज अमाउंट कांस्टेंट रहती है लेकिन परसेंटेज चेंज हो रही होती है। ओके, सो the curve you can say if you plot plasma time level curve it is the linear as such, लेकिन ये जो डिक्रीज होता है ये लीनियर होता है, मीन्स कि सेम अमाउंट डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होता है, परसेंटेज वाइज होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। सो प्रोपोर्शनल और यू कैन से द परसेंटेज वाइज डिक्रीज। सो दिस इज द डेटा फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का डेटा है। देखें आप यहाँ पे कि कांस्टेंट अमाउंट 10 10 10 10 10 10
So the constant amount it is eliminated. This is the first order का डेटा है और ये दूसरी कोई ड्रग है एंड 100 से 10% कम हो गया 90 हो गया इसका 10% कम हो गया 81 हो गया यहाँ देखें आप कॉन्स्टेंट अमाउंट नहीं डिक्रीज हो रही थी अमाउंट इज चेंजिंग लेकिन परसेंटेज आपकी 10% आप इसका कैलकुलेट करेंगे 10% आएगी इसका फिर इसको 100% कंसिडर करके इसका आप जब 10% इससे माइनस कर लेंगे आपकी ये अमाउंट आ जाएगी सो द अमाउंट इज चेंजिंग बट द परसेंटेज इज 10% ऑल टुगेदर जहाँ पर हर जगह पे 10% आपकी शो होगी जहाँ पे आपकी टन अमाउंट वो हो रही है कांस्टेंट है लेकिन आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे द परसेंटेज विल बी वेरिएबल आप इसकी हाफ लाइफ जब कैलकुलेट करेंगे इन दिस केस हाफ लाइफ विल बी वेरिएबल इन दिस केस हाफ लाइफ विल रिमेन द कांस्टेंट इसको हम फर्दर जो लेक्चर्स हमारे आएंगे उसको डिस्कस करेंगे ओके again this is the data for first order elimination rate constant the constant percentage of drug is being eliminated 100 से आप 80 आए हैं 80 से फिर 20% आप डिक्रीज करते हैं so the constant percentage of the drug is decreasing with respect to time but the amount is changing ये यहाँ पे देखिए 20 वो हुई है और जहाँ पे जो डिक्रीज है 16 का हुआ है एंड अगेन जहाँ पे जो डिक्रीज है दैट इज 13 का हुआ है तो अमाउंट इज चेंजिंग परसेंटेज विल रिमेन फिक्स दैट इज द मैंने 20% डिक्रीज हो रहा है ऑन एवरी स्टेप so that is called as the first order process so altogether the ADME process absorption distribution metabolism and elimination they follow the rate process that could be first order or zero order process in case of zero order process the constant amount the rate of change is constant with respect to time amount wise constant percentage is changing in case of first order the percentage remains the constant or proportion the fraction remains constant but the amount is changing इस केस में जो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में है द हाफ लाइफ it remains the constant but in case of zero order the half life become the variable तो कुछ ड्रग्स हैं जो उसको फॉलो करती हैं फॉर्मुलेशन है जो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे फॉलो द first order process okay thank you very much for your attention and please like and follow our page for further lectures thank you